نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظیم۔ محترم بھائیو بزرگوں، خطبے میں ایک آیت پاک تلاوت کی گئی جس کے اندر اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے شہادت ایک ایسا اونچا مقام ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اللہ رب العزت اس شہید کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں اور شہید کو موت سے پہلے اللہ پاک جنت عدن کا دیدار کراتے ہیں۔ شہید کو دنیا سے روح نکلنے سے پہلے حور عین کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ الغرض شہادت اسلامی اعتبار سے بہت اونچا مقام ہے، اسی لیے شہادت جو راہ خدا میں شہید ہو جائے اس کی تجہیز و تکفین کے مسائل بھی الگ ہیں کہ اس کو جس حالت کے اندر انتقال کر جائے اسی حالت کے اندر دفن کیا جاتا ہے کہ اسی حالت میں روز محشر میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں میرے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، جسم کو کاٹا گیا اور میرے جسم سے یہ خون بہا ہے، یہ میں نے صرف آپ کی محبت میں کیا ہے۔ تو بطور حجت کے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کے احکام و مسائل بھی الگ رکھے ہیں۔ ابھی فلسطین کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے دل کا غمگین ہونے کے لیے ایمان والا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان اگر ہو اور اس کے دل میں انسانیت ہو تو وہاں کے جو دردناک المناک مناظر ہیں وہ ایک انسان کے اندر کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسانیت دل میں نہیں ہے، انسانیت ختم ہو گئی اور دل میں صرف حیوانیت یا حیوانی کرتوت باقی رہ جائیں تو پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو معصوم بچوں کے بلک کے ختم ہونے پر ان کی شہادت کے اوپر ہنس بھی رہے ہیں، ازراہ مذاق اس کا تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اسلام میں شہادت کا بہت اونچا مقام ہے۔ جس شہادت اور جس موت کے نام سے میں اور آپ گھبراتے ہیں، صحابہ اس موت کو اپنے گلے لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تینوں صحابہ کرام اور اس طرح سینکڑوں صحابہ کے واقعات ہیں جو موت کو اپنے گلے لگائے ہیں اور موت ان کے نزدیک اتنی عزیز تھی جس درجے عزیز میرے اور آپ کے نزدیک زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم تمام کی شہادت کے واقعات میں جو اصل چیز ہے کہ اس کے پیچھے جو دماغ تھا وہ یہودی دماغ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فجر کی نماز میں چاقو بھونکا گیا۔ تفصیلی شہادت کا واقعہ بیان کرنے کے لیے وقت بالکل تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے۔ چاقو پیٹ میں بھونکا گیا، انتڑیوں کے راستے سے غذا ڈالی جاتی تو باہر آ رہی ہے۔ قتل کرنے والے کے پیچھے یہودی کا دماغ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک محاصرہ کیا گیا۔ 40 دن کھانا پانی حضرت عثمان غنی کو نہیں پہنچایا گیا۔ آج مجھے اور آپ کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، 4 لوگوں کو کہتے ہیں بھائی بھوکا ہوں، ناشتہ نہیں کرا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، ایک ٹائم پانی نہیں ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک کیا گیا،
खाना नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं पहुंच रहा है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे और बहुत सारे असबाब थे कि घुटने टेक देते, सरेंडर हो जाते, दुश्मनों के आगे झुक जाते तो उस्मान गनी को जिंदगी मिल जाती। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु घुटने नहीं टेके, दुश्मनों के आगे नहीं झुके। 40वें दिन शहादत मिली। उसके पीछे दिमाग था अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी का। हजरत अली मुर्तदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शहादत हुई, उसके पीछे दिमाग था अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी का। तो अलगर्ज जितनी इस्लाम दुश्मने ताकतें हैं रोजे अव्वल से वो काम करती आ रही हैं। आज फलस्तीन में, गजा में जो हालात हैं, चारों तरफ से उनका मुहासरा किया जा रहा है और चारों तरफ से ग़िज़ा, पानी पहुंचने की, उनके पास पहुंचने के असबाब को बंद किया जा रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस देखने में आ रहे हैं कि वीडियोस में एक छोटा सा 3 साल की मासूम बच्ची पानी के लिए बिलक रही है। प्यास की शिद्दत को जब हद क्रॉस कर गई, बच्ची जाकर टूटी के नीचे टूटी की तरी से अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश कर रही है। कोई बच्ची अपनी माँ की छाती के अंदर दूध पीते पीते दम तोड़ रही है। कोई बच्ची छत के मलबे तले सैकड़ों बच्चियां दबी जा रही हैं। मेरे और आपके ईमानी भाई वो बेसरो सामानी के आलम में इस दर्जे पड़े हुए हैं कि वाक़ियात बयान करें, वाक़ियात सुने, अंदर से अगर ईमानी शान हो, ईमानी गैरत हो, ईमानी हमीयत हो तो ज़मीर को झिझोड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, उन दुख भरे हालात को और उन दुख भरे वीडियोस को और उन दुख भरी चीज़ों को देख के मैं और आप इतनी ईमानी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि उन वीडियोस को शेयर कर लें और शेयर करके हम अपने जगह बस इस बात का रोना रोते रहे कि हम दूर बैठ के कर क्या सकते हैं। तो हम कर ये सकते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मुखुल इबादा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाते तो एक तरफ असबाब के दर्जे में तलवारें निकाल के जंग लड़ी जाती थी, तो दूसरी तरफ रात की तारीकियों में उठ के अल्लाह के सामने आहोजारी भी की जाती थी, अल्लाह के सामने असबाब को मांगा जाता था, अल्लाह से नुसरत खुदाबंदी को मांगा जाता था, अल्लाह से अपने ताल्लुक को दुरुस्त किया जाता था। मैं और आप सोचे कितने ईमानी भाइयों ने उन बिलकते हुए, उन निहत्ता, उन बेसरो आलसामानी के आलम में पड़े हुए ईमानी भाइयों के लिए हम में से कितने लोगों ने रात की तारीकी में जब खुदावंद रब्बे खुदावंदी आसमान दुनिया पे आके कह रहा है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे, तो उस अल्लाह के सामने उन मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के लिए रोने वाले कितने ईमानी भाई हैं। हम में से कोई, हमारे दिलों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वजह ये है कि हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को और हमारे सोचने के अंदाज को उन यहूदियों ने इस गैर महसूस तरीके से कैच कर लिया है। हम मगरिब के दिल दादा बनते जा रहे हैं। मगरिबी तहजीब हमें पसंद है, मगरिबी खाने हमें पसंद है। कहने के लिए हमारे बड़े हमको कह रहे हैं कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, उनकी मईशत को कमजोर करने के जो असबाब हो सकते हैं असबाब इख्तियार करें। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे बड़ों की तरफ से बात कही जा रही है, लेकिन हमसे हमारे मुंह के मजे नहीं छूट रहे। क्या हम अल्लाह की राह में अपनी जान को देंगे? क्या हम अल्लाह की राह में फाकों को बर्दाश्त करेंगे? क्या हम अल्लाह की राह में अपने खून को बहाएंगे? अल्लाह की राह में हमको उनकी मसनूआत का बाइकाट करना नहीं है। हमको अपने मुंह के मजे नहीं छूट रहे। हमको सिर्फ उनकी मसनूआत के बाइकाट के लिए बड़ी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। बतलाया जा रहा है कि इन चीजों से बचे, इन चीजों के इस्तेमाल से अपने आप को जिस दर्जे रोक सकते हैं रुके, लेकिन हमसे मुंह के मजे नहीं छूटते। हम अल्लाह के सामने उन मजलूम फिलिस्तीनी निहत्ते भाइयों के लिए हमारी आंखों से आंसू नहीं निकले तो और मैं और आपसे ज्यादा ईमानी बेगैरती की और कोई बात नहीं हो सकती। कितनी
कितने वाक़ियात हैं, खाली एक एक वाक़ये को देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन वो मर्द मुजाहिद हैं, उनको शहादत के मकाम का पता है। उनको हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो अल्फाज जो उन्होंने दुश्मनों की आंख में आंख डाल के कही थी कि हमें मौत उस दर्जे अजीज है जिस दर्जे तुम्हें जिंदगी अजीज है। तुम शराब को जितना अजीज रखते हो, हम मौत को उतना अजीज रखते हैं। आज जाके उन मासूम बच्चों को देखें, उनके जज्बों को देखें कि उनके माँ बाप उनके सामने दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके जज्बे ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए एक एक आदमी अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार है। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, एक दर्द दिल, अंदर से एक दिल की बात है, एक सदाए दिल है कि हमारे बड़ों की तरफ से बात कही जा रही है। फजर बाद सूरह मुज़म्मिल, फजर में दुआए कुनूत का एहतमाम, और इसी तरह जब हमें फुर्सत मिले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह के सामने उन मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के रोना और उनके लिए मांगना और उनके लिए आहोजारी का करना और उनकी मसनूआत का जिस दर्जे बाइकाट हम कर सकते हो जरूर करना है। वरना वो जामे शहादत पी रहे हैं, वो हर हाल में कामयाब है। उनका इस्तकबाल हुरईन कर रही है, उनका इस्तकबाल जन्नत अदन से किया जा रहा है। उनके लिए अल्लाह कह रहे हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, तुम उन्हें मुर्दा न कहो, वो शहीद है। क़यामत तक उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, क़यामत तक उसी हाल में रहेंगे और क़यामत में उसी हाल के अंदर उठेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस हाल में मरता है उसी हाल में क़यामत में उठेगा। गाना सुनते हुए मरेंगे, गाना सुनते हुए उठाए जाएंगे, गुनाह करते हुए उठेंगे, गुनाह करते हुए उठाए जाएंगे। शहीद का वो खासियत है कि शहादत के खून में लथपथ और रोज़े महशर में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ होगा। हम में से बहुत सारे ये सोच रहे हैं और ये गलत फहमी में जी रहे हैं कि आग तो बहुत दूर लगी है, हमारे घर को आग लगने में आग नहीं लगेगी, आग उधर लगी है, कल आग इधर भी लग सकती है। घर आज उनके उजड़ रहे हैं, घर हमारे भी उजड़ सकते हैं। आज हम अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने आहोजारी नहीं करेंगे, अपने और अल्लाह के ताल्लुक को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह कह रहे हैं मुसीबतें आएंगी बदअमालियों की वजह से। तो ये वक्त है कि हम उन हालात से अपने आप को बदले, अपने दिल की दुनिया को बदले, मगरिब को, मगरिबी कल्चर को, मगरिबी तहजीब को और मगरिब के दिलदादा लोगों से इल्तिजा है कि हम इस्लामी तहजीब को, इस्लामी तमद्दुन को, इस्लामी शनाख्त को, इस्लामी कल्चर को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। अपने जिस्म से, अपने दिल से, अपने दिमाग से हम इस्लाम को अपना मजहब बनाएं और इसके लिए मरने मिटने के जज्बे हमारे खून में होने चाहिए। हम मजबूत वो कौम है जो हजारों लोग, लाखों लोग अल्लाह की राह में शहीद हो रहे हैं, लेकिन एक के पीछे एक वो अल्लाह की राह में शहीद हो रहे हैं, लेकिन अपनी गर्दन को झुकाना पसंद नहीं करते। हजरत खब्बाब, उनको सूली पे लटकाया जा रहा है। हजरत खब्बाब से कहा जा रहा है अब तुम्हारा दिल गवारा कर रहा है कि तुम ईमान को छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो। तो हजरत खब्बाब ने ये कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह तुम्हारी जगह आए। तो उन्होंने कहा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी की पाँव में कांटा चुभे ये खब्बाब को गवारा नहीं है। लेकिन आज मेरा और आपका खून इतना ठंडा पड़ते जा रहा है, इतना ठंडा पड़ते जा रहा है, हम गैरों की हाँ में हाँ मिलाना कामयाबी समझ रहे हैं, गैरों की कल्चर को अपनाने में कामयाबी समझ रहे हैं। क्या गैरों का त्योहार आ गया, बिरादरान वतन से हमदर्दी के नाम पे बहुत सारे लोग वो लिबास भी पहन रहे हैं, उनके त्योहारों में भी जा रहे हैं, उनके रंगों में ढल भी रहे हैं, और हम अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को, अपने इस्लामी शनाख्त को भूलते जा रहे हैं। ये जो हालात फलस्तीन में बने हुए हैं और एक नमूने के तौर पे वहां पे तख्ते मश्क बना के वो सारी दुनिया के अंदर इस बात को कोशिश करेंगे और ये कोशिश क़यामत तक बाकी रहेगी। लेकिन अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने ऐसी लचक रखी है, उतना ही उभरता है जितना कि उसको दबाएंगे।
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق لیں، اپنے دل کی دنیا کو سنواریں، اپنے اندر ایمانی اخلاق کو، ایمانی صفات کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اور ان فلسطینی بھائیوں کے لیے عمومی طور سے اور خصوصی طور سے جو ہم عبادتیں کر سکتے ہیں اور بائیکاٹ کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، وقتی جزئی نہیں، ہمیشہ کے طور پہ کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔